Hello student, today we are going to understand the third poem of your class 11th. The name of the poem is Voice of the Rain. The Voice of the Rain. And let's see first of all who is the poet of this poem. Walt Whitman. Okay. Walt Whitman is the poet of this beautiful poem. And first of all let me tell you what is the summary or what the poem is basically about. In this poem, poet sees the gently falling of shower and the poet is asking to the rain, who are you? And strangely, the poem or the rain give answer, and it tells the poet that it is the foam, it is the poem of the earth and the voice of the rain. The shower is eternal. Okay, so it rises out of the land and deep sea. From there, the shower goes upward and there is outer form of totally change, yet it remained the same. Then shower descended to the earth and to wash away the draft and the dust layer of the earth, and seeds in the earth would remain only seeds without the help of shower. They would not take birth. The shower says that night and day it tries to give life, it tries to give birth to the earth and make it pure and beautiful. The shower says that a song after fulfillment return to its birthplace with love. The shower is also like a song. It takes birth from the land and then return to it. Basically, this was the summary of this poem, that is about how the rain originates and where it goes. So here are two voices. One voice belongs to the poet and the second voice that of the rain. Poet is asking to the poem to the rain, and rain is giving reply to the poet. So let's see the poem. And who art thou? Thou means you. और तुम कौन हो? Said I, मैंने कहा, to the soft falling shower, उस shower को, उस गिरती हुई shower को. Which strange to tell, give me an answer. And the poet is saying कि it is strange that rain gave me an answer. ये अजीब है कि बारिश ने, उस rain ने, उस shower ने मुझे जवाब दिया. As here translated like this, कि किस तरह उसने जवाब दिया, rain ने क्या जवाब दिया. That is, I am the poem of earth, said the voice of rain. कि मैं कविता हूँ, poem हूँ अर्थ की. Voice of rain, उस बारिश ने, उस आवाज ने, उस voice ने, rain की voice ने कहा. Eternal as I rise, impalpable out of land and the bottomless sea. कि मैं अर्थ की कविता हूँ, बरसात की, इस आवाज ने कहा, इस बारिश की आवाज ने कहा, और कहा कि impalpable means अनंत, okay, that can't be described या where can't be reached. Eternal I rise impalpable out of the land, कि मैं अनंत रूप से बिना किसी को नजर आए, बिना किसी को दिखे, out of the land, धरती से, out of the land, इस land से, and the bottomless sea, और कभी ना bottom यानी जिसका तल ना हो, bottom ना हो, और इतने गहरे समुद्र से, इतने गहरे सागर से उठती हूँ. अब यहाँ पे the voice of rain की जो आवाज है रेन की, he is replying कि वो कहती है कि मैं पोएम हूँ अर्थ की और मैं बिना किसी को नजर आए इस अंतहीन, इस जमीन से, इस लैंड से उठती हूँ, और अंतहीन जमीन से और बॉटमलेस सी से उठती हूँ. ठीक है, तो वो ये यहाँ पे बता रही है इस स्टेंजा के अंदर. So here, what does the poet call the rain? The poet calls the rain the poem of earth. What? The poem of earth. This one. And from where does the shower rise? The shower rises out of the land and the bottomless sea. And what does thou refer to? And thou means you. Okay. Poet is asking to the rain. So this was explanation of the first stanza, where the poet sees the gently falling shower and asks, who are you? And strangely the rain is giving answer, and it tells the poet that its
it is the poem of the earth and voice of rain. The shower is eternal, and it rises out of the land and bottomless deep sea, and from there the shower goes upward. That was explanation of the first stanza. Let's move toward the second stanza. Upward to heaven, whence weakly formed altogether, changed and yet the same. अपवर्ड टू हेवन. अब बारिश क्या है, वो कहती है कि मैं ऊपर की ओर रुकती हूँ, ठीक है, यानी ऊपर आकाश की तरफ जाती हूँ, हेवन की तरफ जाती हूँ, इस स्वर्ग की तरफ जाती हूँ. वेंस वेगली, वेगली मीन्स अनक्लियर, दैट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट. ओके. फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, जहां पे अनक्लियर यानी जहां पे अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर तरीके से मेरा फॉर्म होता है, मेरा निर्माण होता है, मैं बनती हूँ. ऑल टुगेदर चेंज, जहाँ पे मैं कम्प्लीटली चेंज हो जाती हूँ, ठीक है. जैसे बारिश होती है, जब इवेपोरेशन प्रोसेस इवेपोरेट होती है, तो जैसे ही आकाश में बादल बन जाते हैं ना, यानी कि पहले तो वेपर की फॉर्म में वो जाती है और यहाँ पे टोटली चेंज हो जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं, यहाँ पे उसका फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है. एंड येट द सेम, और फिर भी मैं कहती है वही रहती हूँ, यानी कि मैं बारिश ही रहती हूँ. हालांकि मेरी शेप चेंज हो जाती है, मेरी फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन हूँ तो मैं बारिश ही. आई डिसेंड, डिसेंड्स मीन्स कम डाउन, नीचे आना. टू लेव, लेव मीन्स धोना, वॉश आउट, धो देना, साफ कर देना. द ड्राफ्ट, एटोमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. अब वो कहती है कि मैं वापस आती हूँ, या वापस किस तरह से, कि मैं रहती तो रेन ही हूँ, मैं धरती पर जो ड्राफ्ट है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, या फिर जो एटोमीज है, एटम्स है, जो छोटे छोटे जो कण है, एटम्स है, किसके, धूल के, डस्ट लेयर के, ग्लोब के ऊपर, धरती के ऊपर, उनको धो डालने के लिए नीचे आती हूँ. जब बारिश होती है तो बिल्कुल सब क्लियर हो जाता है ना, तो वही कहती है रेन कि जब मैं नीचे आती हूँ और सारी चीजों को धो देती हूँ, ड्राफ्ट को, एटोमीज, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब्स एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कहती है कि उनमें से जो कुछ है, सब जो कुछ है वो क्या है, वो सीड है जो कि अनबोर्न है, अनबोर्न पड़ा रहेगा मेरे बिना, जो छिपा हुआ, लेटेंट है, अनबोर्न है, जो धरती के अंदर छिपा हुआ है. अगर मैं नहीं आऊंगी तो वो बीज का बीज ही रह जाएगा, वो कभी भी वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है. वो यही कहती है कि एक बीज सिर्फ बीज ही बना रहता, वो कभी एक प्लांट नहीं बनता अगर मैं नहीं होती तो इन दिस सेकेंड स्टेंजा द पोएम इज रिप्लाइंग कि मैं ऊपर जाती हूँ, जहाँ पे मैं खुद को बनाती हूँ, मेरा खुद का निर्माण होता है और कम्प्लीटली चेंज हो जाती हूँ यहाँ पर. एंड येट द सेम, और फिर भी सेम रहती हूँ, मेरा फॉर्म चेंज होता है, मैं सेम रहती हूँ. और फिर मैं किस तरह से यहाँ सफाई करती हूँ, सफाई इन द सेंस कि जो सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, उसको साफ करती हूँ. एटॉमिक धूल के कण है, डस्ट लेयर है ग्लोब पे, वो साफ कर देती हूँ. और अगर मैं नहीं होती, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बीज, जो कि अनबोर्न, लेटेंट पड़ा रहता, छिपा हुआ रहता धरती के अंदर, अगर मैं ना होती तो. सो हियर I, who is I here? I is rain. And how does it help to the ecosystem? And it clear, it live, and it remove the draft, atomies and dust layer. Okay. And how does it generate life? The rain makes the seeds sprout. Okay. So that was all about this second paragraph. Let's move toward the third one and the last one. And forever, by day and I give back life to my own origin. Here the rain is saying कि और हमेशा के लिए, और हमेशा the rain says that by day and night it provide life. Okay, it provide life, care, enrichment in water. It life to my ऑन ओरिजिन, मैं खुद को ओरिजिन में अपने खुद को वापस लेके आती हूँ. आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, मैं अपने अस्तित्व को वापस लेके आती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, कि it provide life, care, enrichment in water to the place from where it originated. The rain keeps enhancing the beauty and purify the earth by preparing a life cycle for itself again. So what is the life cycle? I will explain it further. कि सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि वो कहती है कि और हमेशा के लिए, दिन रात मैं हमेशा अपनी ही ओरिजिन को, अपने ही अस्तित्व को लाइफ देती रहती हूँ, अपने आप को बनाती रहती हूँ और उसको प्योर और ब्यूटिफाई करती रहती हूँ. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्टरिंग, रिकॉन्ड और अनरिकॉन्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न. एंड व्हाट इज सेइंग हियर कि मैं किस तरह से, क्योंकि मैं अपने जो अपना ये सॉन्ग है, मेरा जो गीत है, अपने इस बर्थ प्लेस से निकलकर कंप्लीट
होने के बाद, चाहे मुझे पहचाना जाए चाहे मुझे ना पहचाना जाए, और प्यार के साथ मैं वहीं वापस लौट आती हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कौन से साइकिल को दिखाया गया है यहाँ पे। सो इन दिस पोएम द रेन टेल्स द पोएट दैट इट मेक्स द बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड सी, कि अगर हम इस साइंटिफिक तरीके से इसको देखें कि जो कि लैंड से और सी से ये ओरिजिनेट होती है, इसका बर्थ होता है, देन इट गोज अपवर्ड, ऊपर जाती है, चेंज हो जाती है, फिर दोबारा देन इट फॉल्स थ्रू द अर्थ एंड द ओशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दिस इज द साइक्लिक मूवमेंट, कि पहले इवेपोरेट होती है, फिर ऊपर बादल बनते हैं, बादल से फिर वापस आती है, फिर उस ओशन में जाती है, फिर इवेपोरेशन। तो ये साइक्लिक साइंटिफिक एक ये साइकिल मूवमेंट दिखाई हुई है, साइक्लिक मूवमेंट। This is what science tells us about the origin and function of the rain। और वही यहाँ पे रेन कहती है कि चाहे मुझे पहचाना जाए चाहे मुझे ना पहचाना जाए। It means the last two lines which are in bracket की they are comment कि these words are the comment of the poem। The poems the rain said and the poet says that song returned to its origin। The rain is also like the song, it returns to its origin, that is earth। चाहे जो रेन कहती है कि चाहे मुझे कोई पहचाने या ना पहचाने, रिकॉन्ड और अनरिकॉन्ड, चाहे मुझे पहचाना जाए, कोई मेरी केयर करे चाहे मेरी कोई केयर ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं वापस अपने ओरिजिन पे आ जाती हूँ। ठीक है, जहाँ पर वो है, ओरिजिन क्या है, इसका अर्थ है, यहाँ पे ये आ जाती है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप you cleared everything। If you have any doubt you can comment and you can ask me। Okay, so thank you so much, enjoy your day and have a good time।